Hello class, today I am going to start your next lecture of tissue and it's a last lecture also. In the previous lecture we have learned about the connective tissue and all about of the animal tissue is completed. Plant tissue is already completed, so it's a last lecture, it's a short lecture because we only have to learn about the muscle tissue. इस lecture में सिर्फ muscle tissue पढ़ना है. We have to learn about the muscle tissue. So let's start about the nervous tissue. Muscle tissue is completed. So the nervous tissue contains densely packed cells called nerve cells or neurons. Nervous tissue में जो है जो cells होते हैं वो densely means बहुत पास पाए जाते हैं और you say that closely packed called nerve cells जिन्हें nerve cell कहते हैं और it's also called neurons is present in the brain, spinal cord and nerves. और कहाँ पाए जाते हैं? Into the brain, spinal cord and nerves. The neurons are specialized, the nerve cells or neurons are specialized for conduction of impulses. Wherever from the body accept the nerve impulses, it starts sending it to brain or the central nervous system. Brain interpret it and our body respond to the impulses. Body में जहाँ कहीं से भी nerve impulse मिलता है, nerves और neurons उस nerve impulse को brain तक send करते हैं. Brain उसका answer reply देता है और फिर हमारी body उसके according react करती है. They receive stimuli from within or outside the body. Sometimes the stimuli comes from the outside. कभी कभी outside होता है, कभी हमारी body से ही उद्दीपन होता है. उद्दीपन means stimuli, okay? Sometimes something occur in our body like the indigestion or something happens, and this message also sent to the brain, and brain interpret that what on that condition what the organs have to do. कि कभी कभी जो है ब्रेन वो इंटरप्रेट करता है, कभी कभी बॉडी के अंदर से इम्पल्सेस मिलते हैं, कभी बाहर से मिलते हैं, पर हर हाल में ब्रेन उसका आंसर देता है और फिर बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है. तो ये मैसेज नर्व सेल जो पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन, वो एक इम्पल्स की तरह होता है. जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक एक इम्पल्स की तरह सिग्नल की तरह दौड़ती है, तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है, तुरंत ही स्विच हम ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है, या इफ़ वी स्विच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो तुरंत वो काम करते हैं. सिमिलरली जो नर्व सेल मैसेज वो सेंड करते हैं वो भी एक इम्पल्स की तरह ही सेंड होते हैं. ठीक है, विच ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल करते हैं. ईच न्यूरॉन हैज़ 2 पार्ट्स. हर न्यूरॉन के 2 पार्ट्स हैं. बीच वाला पार्ट होता है साइटोन और सेल बॉडी contains a central nucleus and cytoplasm with characterized deeply stained particles called nasal granules. Each neuron has following 2 parts. बीच वाला जो होता है that is known as cell body or cyton. I'll explain you in the figure with the help of the figure. अभी फिगर से समझाते हैं. Contain a central nucleus. जो cyton होता है वो सेल का बीच का पार्ट होता है. See it's a middle part जिसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं. विद कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल, जिसमें बहुत डीपली कलर्ड पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं जिन्हें निजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं और क्लम्स ऑफ राइबोसोम कहते हैं. ठीक है, जैसे राइबोसोम छोटे छोटे होते हैं वैसे निजल ग्रेन्यूल्स भी छोटे छोटे होते हैं. सेल प्रोसेस डेंड्राइट्स. These may be one or too many, generally short and branch cytoplasmic process. ये एक या बहुत सारे होते हैं. ब्रांच्ड होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है. साइटोन से जो बॉडी निकलती है उनमें बहुत सारे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होते हैं. दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज डेंड्राइट्स. Dendrites are afferent process because they receive impulse from receptor or other neuron and bring it to cyton. क्या होते हैं? ये नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं तो इन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं. फिर ये उस नर्व इम्पल्स को साइटोन तक पहुंचाने का काम करते हैं. Now see in the figure, see this central body. ये जो बीच का पार्ट है that is known as the cyton, जिसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, एंड ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? that is known as the cyton or the cell body. Now see in this cell body some granular structure are found. कुछ सर्कुलर से ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर हैं जिसे कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल. ओके,
And now again this cytoplasm is divided into the hair-like structure that is known as dendron. Again this dendron is divided into thinner part that is known as the dendrite, जिसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, जो मैसेज को, नर्व इम्पल्स को पहुंचाने का काम, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सॉन. सी दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्सॉन, जो कि साइटोन से निकला हुआ है. इट इज़ जनरली long efferent process which conduct impulse away from cyton to the neuron. डेंड्रॉन क्या किया, डेंड्रॉन इम्पल्स को साइटोन में लाया और एक्सॉन साइटोन से ले जाने का काम करता है. लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज न्यूरॉन बिकॉज एक्सॉन कैन बी मोर देन 1 मीटर लॉन्ग. लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज न्यूरॉन. न्यूरॉन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है. क्यों? क्योंकि इम्पल्स बॉडी के किसी भी ऑर्गन से आता है. पैर के नेल से भी, नाखून से भी आ सकता है और सिर से भी आ सकता है. मीन्स फ्रॉम रूट टू टिप, अगर कह सकते हैं कि हर जगह से आपके पैर में चोट लगती है तो भी आप महसूस करते हो, आपके सिर में छोटी सी चोट लगती है तो भी आप महसूस करते हो. तो इन हर जगह से न्यूरॉन जो है वो मैसेज को, वो इम्पल्स को रिसेप्टर की तरह रिसीव करता है और फिर साइटोन तक पहुंचाने का काम करता है. तो ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं. एक्सॉन हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस. यूनिफॉर्म देखो, ये थिकनेस ऐसा नहीं है कहीं मोटा है कहीं पतला है, बट इट हैज़ टर्मिनल थिन ब्रांच कॉल्ड टीलोडेंड्राइट. लेकिन उनके जो टर्मिनल्स होते हैं, एंड होते हैं, वो थोड़े देखो यहाँ पतले हैं, जिसे टीलोडेंड्राइट कहते हैं. टर्मिनल एंड बटन्स और सिनेप्टिक नॉब्स अकर एट द एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया. सिनेप्टिक नॉब मीन्स अब ये एक्सॉन जब दूसरे नर्व सेल के एक्सॉन से मिलेगा तो उसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं. ठीक है, दिस इज एक्सॉन एंडिंग. ये एक्सॉन की एंडिंग है. टाइप ऑफ न्यूरॉन. अब न्यूरॉन्स होते किस तरह, कितने तरह के हैं? बेस्ड ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन द न्यूरॉन्स और ऑफ डिफरेंट टाइप. न्यूरॉन डिफरेंट तरह के होते हैं. मल्टीपोलर, जिनमें कई सारे पोल्स होते हैं. इट हैज़ मैनी डेंड्राइड, जिनमें बहुत सारे डेंड्राइड होते हैं. एंड 1 एक्सॉन. सी द फिगर आई हैव शोन यू कि इसमें बहुत सारे डेंड्राइड हैं. सी सो मेनी डेंड्राइड्स आर प्रेजेंट और एक्सॉन सिर्फ एक है. तो अगर ऐसा होगा सो दैट इज नोन एज द मल्टीपोलर, कि डेंड्रॉन ढेर सारे हैं बट एक्सॉन एक ही है. नेक्स्ट इज बाइपोलर न्यूरॉन. अ न्यूरॉन हैविंग 1 डेंड्रॉन एंड 1 एक्सॉन, जिसमें एक ही डेंड्रॉन एक ही एक्सॉन है, इज कॉल्ड बाइपोलर. दे जनरली अकर इन सेंसरी लेयर्स लाइक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. जो सेंसरी लेयर्स हैं उनमें पाए जाते हैं. यूनिपोलर न्यूरॉन, इट हैज़ सिंगल प्रोसेस एज एक्सॉन बट डेंड्राइड इज एब्सेंट. सिर्फ एक सिंगल आपको एक्सॉन जो दिखाया वही पाया जाता है, डेंड्राइड में एब्सेंट होते हैं, एक ही होता है, तो इसीलिए यूनिपोलर कहते हैं. स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो आपको पता है फॉल्स होता है, जो होता नहीं एग्जैक्टली. सच न्यूरॉन हैज सिंगल फाइबर अराइजिंग फ्रॉम साइटोन which bifurcates into a dendron and 1 axon. Such न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन जिसमें सिंगल फाइबर पाए जाते हैं, साइटोन के एक सिंगल साइटोन पाया जाता है और वो बाइफर्केट करता है, डिवाइड होता है डेंड्रॉन और एक्सॉन में. नॉन पोलर और एपोलर तो नाम से ही क्लियर है. दीज न्यूरॉन हैव मैनी फाइबर्स बट दे आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू डेंड्राइट. बहुत सारे फाइबर्स से स्ट्रक्चर तो होते हैं लेकिन वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, अलग अलग नहीं होते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन में. Each fiber can receive impulse towards cyton or can conduct impulse away from cyton. Each fiber, हर एक फाइबर क्या करता है, can receive impulse toward the cyton. जो क्या करता है कि इम्पल्स को रिसीव करता है साइटोन से, और कैन कंडक्ट, या तो इम्पल्स रिसीव करता है या साइटोन से मैसेज को दूर ले जाता है. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. और आपको न्यूरॉन का फंक्शन पता है कि न्यूरॉन मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं, साइटोन तक पहुंचाते हैं, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन फिर ब्रेन तक, और फिर मैसेज इंटरप्रेट होता है और हमें उसका स्टिमुलस का आंसर मिलता है. तो नाउ योर सेल्स आर कंप्लीटेड. आपके जितने तरह के टिश्यू थे सब कंप्लीट हो गए हैं. अब हम आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देते हैं. उसके बाद आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी फ्रॉम द नोट्स. ओके, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं. ठीक है. व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यू आर वेल नोन, आपको अच्छे से पता है. द ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल पाया जाता है. हमारी तरह हर एक काम को करने के लिए स्पेशल ऑर्गन और बहुत सारे सेल नहीं होते. दीज आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लैमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ऑल.
What is tissue? A group of cell having similar structure and function is called tissue. सेल का ऐसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा हो, जो एक ही जैसे दिखते हो और काम भी एक ही जैसे करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप आपने पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे? एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, ये एक शॉर्ट रिवीजन भी है, आप रिमाइंड कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितने तरह के हैं. What are the dividing cell of the tip of root and stem known as? जो dividing ऊपर से सबसे पाया जाता था वो क्या था? Apical tissue, and that is a type of meristematic tissue. नेक्स्ट इज नेम वेरियस एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. की जो परमानेंट टिश्यू था दो तरह का था, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, दैट इज ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. ये 4 तरह के थे. आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जा रहा है क्योंकि अपने लेक्चर 1 में 2 में पढ़ा था आई थिंक ये. नेम वेरियस एलिमेंट ऑफ फ्लोएम. अब फ्लोएम भी 4 टाइप के थे, स्लीप, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. Where are the meristematic tissue found in the plant body? प्लांट की बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? The meristematic tissue is found at all the growing points of a plant such as tips of root, stem and branches. हर एक पार्ट की ग्रोइंग टिप पे, जो टिप्स होता है, ऊपर वाला टिप होता है, वहीं पे पाए जाते हैं जिससे उनका ग्रोथ होता है. बताया था आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल जो ऊपर पाए जाते थे जिससे ऊपर की ओर ग्रोथ होता है, इंटरकैलरी और लेटरल जो लेटरली करते हैं. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड. बार्क और वुड के बीच में भी पाए जाते हैं जिससे उनकी थिकनेस इंक्रीज हो. कौन सी पाए जाते हैं? इंटरकैलरी. लेटरल लेटरली करते हैं और इंटरकैलरी क्या करते हैं? उनकी थिकनेस को बढ़ाते हैं. सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू. आपका ये चैप्टर टिश्यू कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से. कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.